Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our economic entomology paper. In this video lecture, we will continue the discussion of household pests with another insect, that is wasp. So you might have seen the wasp, which is bee-like insect, and it is one of the member of the same order that is the bee belong to, that is the Hymenoptera order. The bees and wasps are somewhat similar because they are having a petulus, that is connecting or connection between abdomen and thorax. When we are talking about the antennae are short, while the compound eyes are well developed in these insects, and they are having well modified wings which are membranous, and legs are also well modified. They are having biting and chewing type of mouth parts. Wasps are having different type of coloration according to their species. There are number of species, as I said, that one is red in color, some are black in color, some are with black body and yellow colored patches on their body, and some are somewhat different greenish color. So there are a number of species, but amongst these some are in contact or close contact with the human beings. First, one more thing about the wasps is that they might be solitary or colonial. So most of the colonial wasps prefer to live close to the human colonies, we can say, and they prefer to build नेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट, और जैसे उनकी हैबिट होती है उसके हिसाब से वो अपना नेस्ट प्रिपेयर करते हैं. आइदर वो वैक्स का नेस्ट प्रिपेयर करते हैं या फिर मड का. सो इट डिपेंड्स ऑन देयर हैबिट कि वो कौन सा प्रिपेयर करते हैं. ये वाली जो है अभी डायग्राम जो मैंने बताई है, दे प्रिपेयर वैक्स नेस्ट जैसे हनी बीज का होता है वैसे. और इनमें एक कॉमन बात ये भी है दैट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द डैमेज कॉजिंग नेचर तो वहाँ पे देख लेंगे. सो these insects cause literal damage or serious damage, not in sense of just spoiling clothes और structural damage नहीं cause करते हैं. They just form their colonies near to the that buildings or near to the trees locating nearer to the buildings और apartments के जो AC duct वगैरह होते हैं वहाँ पे बना लेते हैं वो. and it could be at the place of near to the or side to the that windows we can say, या फिर जो doors है वहाँ पे, या फिर जो staircase के डाउन साइड का प्लेस होता है वहाँ पे. so they prefer to form their nest at anywhere, या तो वो मड के हो सकते हैं या फिर वो वैक्स के हो सकते हैं. मैंने बोला कि वो कॉलोनियल भी है हो सकते हैं या फिर वो सॉलिटरी हो सकते हैं. सॉलिटरी इन सेंस अकेले रहने वाले, और कॉलोनियल इन सेंस कि वो कॉलोनी में रहते हैं. डैमेज वो ऐसे कॉज करते हैं दैट दे जस्ट प्रेफर लिविंग और दे प्रेफर फीडिंग ऑन द एनी मटेरियल दैट इज़ जस्ट हैविंग अ शुगरी टेस्ट और विच आर स्वीट इन टेस्ट. तो ऐसी चीज़ों पे वो फीड करते हैं. और इन में से कुछ स्पीशीज़ होती हैं विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पेस्ट ऑफ हनी बीज. क्यों? क्योंकि वो हनी बी कॉलोनीज़ को अटैक करते हैं फॉर गेटिंग द हनी फ्रॉम देम. अभी मैंने बोला दैट कि दे प्रिफर ईटिंग द स्वीट टेस्टेड फूड, तो वो हनी के लिए हनी बी कॉलोनीज़ को अटैक करते हैं फॉर हनी. और दे ऑल्सो जस्ट कैप्चर द larvae of these honey bees so as to get proteinaceous food from them. तो वो उनके लार्वों पे भी फीड करते हैं और वो हनी बीज से हनी भी ले लेते हैं. दे जस्ट theft on that honey also. Second thing, they when come across to the ह्यूमन बींग्स, तो समर टाइम में उनका जो लेट समर होता है तब उनका ब्रीडिंग पीरियड होता है, तब वो बहुत अग्रेसिव होते हैं. एंड दे जस्ट बिहेव इन अग्रेसिव मैनर टू द ह्यूमन बींग्स, और वो
स्टिंग एपरेटस होता है उनके पास में भी, जैसे हनी बीज के पास होता है, वैसा ही स्टिंग एपरेटस वो यूज़ करते हैं अगेंस्ट ह्यूमन बींग्स और एनी अदर एनिमल इन आइदर डिफेंस और ऑफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस इन सेंस वो अपने खुद को बचाने के लिए करेंगे या फिर वो सामने वाले पे अटैक करने के लिए करेंगे। सो यू कैन जस्ट सी दैट हाउ this allergic reaction is done by them, the biting of that particular insect or wasp, you can say. This is how this bited area और जहाँ पे बाइट किया है वहाँ पे स्वेलन अप हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेनम। जो स्टिंग होता है वहाँ पे वेनम होता है। वेनम जो है वो या तो वो स्लाइट रैशेस कॉज कर सकता है या फिर इट कैन ऑल्सो कॉज द एनाफाइलेटिक शॉक। मैं ये स्लोली इसलिए प्रोनाउंस कर रही हूँ सो दैट यू कैन जस्ट गेट द pronunciation. Okay, it is anaphylatic shock. अभी anaphylatic shock क्या होता है? It is a kind of shock या it is a kind of thing कि यहाँ पे जब after sting यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो swelling up हो जाएगा, दूसरा वहाँ पे जो muscles है वो movement नहीं कर पाएंगे. It is a kind of we can say phalangic थिंग. यहाँ पे जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो मूवमेंट बंद कर देता है एंड इन सर्टेन केसेस इट मे ऑल्सो कॉज डेथ ऑफ द एनिमल और एनी ह्यूमन बीइंग जिसको उसने स्टिंग मारा है, तो वहाँ पे वो डेथ भी कॉज कर सकता है, विच मीन्स कि मसल मूवमेंट का एक प्रॉब्लम हो सकता है या फिर या तो वो वहाँ पे फॉलेजिक ऐसा जो है वो वैसा असर दिखाई देगा, वो मूवमेंट नहीं होगा वहाँ पे, या फिर वो सीधे सीधे डेथ भी कॉज कर सकता है अगर वो ज़्यादा अमाउंट में वेनम पास कर दे बॉडी में तो. So this is how it can just cause allergic reaction to the human beings or they can just give a anaphylactic shock to the human beings and they can just cause even sometimes death of the person. So how to control these wasps? There are number of methods to control. First of all you can just keep cleanliness और जहाँ पे भी छोटे छोटे पॉइंट पे यहाँ जहाँ पे भी नेस्ट दिखाई दे जब वो बन रहे हैं when they are just starting to build up और to settle down their nest, उसी टाइम पे उनको क्लीन कर देना चाहिए, उनका नेस्ट डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप एक पॉइंट पे या एक बार वहाँ से नेस्ट निकाल देते हो सो दे प्रेफर नॉट टू प्रिपेयर नेस्ट अगेन इनटू द सेम लोकेलिटी. दैट्स व्हाई यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट. और बहुत सारे टाइम में यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि जो कॉम्ब है उसको वाटर स्प्रे करो, मतलब यू कैन जस्ट स्प्रे फास्ट और रैपिड स्पीडेड वाटर टू द कॉम्ब. नाइट टाइम में करोगे तो बहुत अच्छा होगा बिकॉज दे आर डायोर्नल और नाइट टाइम में वो लेस अग्रेसिव होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, तो उस टाइम में यू कैन जस्ट वॉश आउट और स्प्रे द नेस्ट विथ हाई स्पीड वाटर सो दैट के अंदर जो वर्कर बीज है वो क्या हो जाए कि उनके विंग्स जो है वो वेट हो जाए और दे कुडंट फ्लाई ऑफ, वो नीचे गिर जाएंगे, तब दैट एट दैट टाइम यू कैन जस्ट क्रश देम आउट. और कुछ हाउस होल्ड बेड्स भी हैं जो यूज़ किए जाते हैं, ट्रैप्स यूज़ किए जाते हैं. तो ये मैंने ट्रैप पढ़ाया था व्हेन वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द बेटिंग मेथड्स, तो मैंने वहाँ पे या फिर ट्रैपिंग मेथड्स जो है मैंने बताया था वहाँ पे. तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ बॉटल ट्रैप और एनी दैट फूड ट्रैप में आप इसको कलेक्ट कर सकते हो दैट कि एक फूड का मटेरियल वहाँ पे रख के किसी भी इंसेक्ट को कैप्चर किया जा सकता है. सो दिस इज़ हाउ जनरल हाउस होल्ड मेथड यू कैन यूज़. वन मोर थिंग यू कैन डू दैट इफ़ बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन है तो यू कैन जस्ट यूज़ द 10% ऑफ इमल्शन ऑफ DDT सोल्यूशन. DDT सोल्यूशन यूज़ कर सकते हो सो एज टू किल द वास्प. और या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई इन्फेस्टेशन है तो इफ़ यू कैन जस्ट डू द फ्यूमिगेशन ऑफ HCN विच मीन्स कि HCN का धुआं भी दे सकते हो आप. और या फिर जनरल स्मोक प्रिपेयर करके या आग लगा के स्मोक के थ्रू उनको विदाउट HCN भी आप स्मोक प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर HCN का भी
आप फ्यूमिगेशन कर सकते हो सो एज टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम दिस वैस्प. And even there are number of products available in market what you can use to get rid of from wasp. ये number of products हैं जिनको आप यूज़ करके wasp से छुटकारा पा सकते हैं. So hopefully you have understood this. Thanks for watching. Have a nice day.